औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं, मेरा और आपका मालिक खालिक और रब है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी प्यारे रसूल के नाम, जिनका उसवा हसना हमारे लिए काबिल सताइश और काबिल अमल नमूना है। As usual, we are starting the lecture 8. Before starting of the lecture, I would like to share with you the message of the day. ये एक हदीस शरीफ है सही बुखारी की और बुक 76 का नंबर इसका 509 है। As a message of the day, I would like to share with you. Abu Hurairah reported, the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, Allah Almighty said, whosoever shows enmity to someone divorced to me, I shall be at war with him. My servant draws not near to me with anything borrowed by me more than the religious duties I have enjoined upon him. And my servant continues to draw near to me with the supererogatory works, so that I shall love him. When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask something of me, I would surely give it to him, and were he to ask me for refuge, I would surely grant him it. I don't hesitate about anything as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. He hates death and I hate hurting him. अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है जो कि अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, जो अल्लाह की रज़ा में अल्लाह की जस्ट फॉर सेल्फलेस अप्रोच के साथ कम्युनिटी के लिए अच्छे काम करते हैं, उसके सिलसिले में एक मैसेज है आपके लिए। सेकंड सेइंग इज, बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक इज अ लवली प्लेस टू बी। किताब बेहतरीन दोस्त होती है और किताब की कॉमनी, इल्म की कॉमनी, विजडम की कॉमनी, इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जब पूरी कायनात इंसान से मुंह फेर लेती है, जब इंसान सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, समवट वो स्ट्रेसेस का शिकार हो जाता है, उसको डिफरेंट किस्म की सोचें गिरती हैं, द बेस्ट एंड वेरी सिंसियर फ्रेंड इज सपोज्ड टू बी द बुक। और बुक जो है, एक किताब जो है, इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं। इसलिए कहा गया बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक इज अ लवली प्लेस टू बी। किताब के सफ़ों के दरमियान रहना जिंदगी का दूसरा नाम है। बिकॉज यू इन्वॉल्व योर सेल्फ, you seek knowledge out of it, you share the things with it, and you come to know about the different how to attitude building, success life में कैसे gain करनी है, wisdom कैसे gain करनी है, proactive approach कैसे होनी चाहिए, और how to respect elders and teachers. It's a really good message. With this we start our lecture 8, and before moving to lecture 8, I would like to share with you the summary of lecture 7, last lecture, so that we are on the same page and you recapitulate all the things which were discussed in lecture 7. The first point we discussed in lecture 7 was that the company is a going concern. Company जो है, business जो है, वो एक ongoing concern के साथ काम किया जाता है. The business is supposed to be continue for the indefinite period in the eyes of accountant or account holder. The revenue should be recognized in the accounting period in which it is earned. रेवेन्यू उसी अकाउंटिंग पीरियड के अगेंस्ट रिकग्नाइज किया जाना चाहिए जिस पीरियड में वो अर्न होता है। इन एक्यूरल अकाउंटिंग, revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred. In accrual accounting, revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred. So ये तीन बेसिक पॉइंट हैं, बड़े अहम, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. That the company is a going concern, that revenue should be recognized in the accounting period in which it is earned. In accrual accounting, revenues and expenses are recorded when they are earned, जब भी वो earn होते हैं. With this we start the lecture 8 और lecture 8 में उसका heading है completion of the accounting cycle.
हाउ टू कंप्लीट दी अकाउंटिंग साइकिल पे हम बात कर रहे थे, और इसको एडजस्टमेंट प्रोसेस को हम सबसे पहले टच करेंगे, द एडजस्टमेंट प्रोसेस। अच्छा जी, एडजस्टिंग प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लीट करते हैं। एक्रूअल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग द अकाउंट्स। एक्रूअल अकाउंट्स जितने हैं वो उनकी एडजस्टिंग इन्वॉल्व होना जरूरी है। एडजस्टमेंट आर नेसेसरली बिकॉज द अकाउंट्स पीरियड बाय डेफिनेशन एंड्स ऑन अ पर्टिकुलर डे भी एंड होते हैं। सम ट्रांजेक्शंस इनवेरिएबली स्पैन द कट ऑफ पॉइंट, जो कट ऑफ पॉइंट को स्पैन करती हैं, एंड देयरफॉर सम अकाउंट्स नीड एडजस्टमेंट। कुछ अकाउंट्स हैं वो एडजस्टमेंट उनकी जरूरत होती है उनके लिए। द नेचर ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, a transaction affects the revenue of expense of 2 or more different periods। हम अभी बात कर रहे हैं दी नेचर ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज के मतलब, इसमें पहली पॉइंट है जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, द ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द रेवेन्यू और एक्सपेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पीरियड्स। जो भी ट्रांजैक्शन है वो 2 या उससे 2 पीरियड्स के दरमियान को टाइम स्पैन को अफेक्ट करती है, उसके रेवेन्यू को। इन दीज केसेस एडजस्टिंग एंट्रीज आर नीडेड टू असाइन टू ईच पीरियड। हर एक पीरियड के लिए एडजस्टिंग एंट्री की जरूरत होती है। द अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिहाज से जो भी उनका हेडिंग चल रहा हो। दीज एंट्रीज एडजस्ट द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। ये जो एंट्रीज हैं ये वेरियस लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को एडजस्ट करती हैं और देखती हैं। सो जस्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं, आई वुड लाइक टू रिपीट फॉर यू ऑल। पहली बात यह है कि अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द रेवेन्यू और एक्सपेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पीरियड्स, ये ज़हन में रखिएगा। फिर इन दीज केसेस एडजस्टिंग एंट्रीज आर नीडेड टू असाइन टू ईच पीरियड द अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। दीज एंट्रीज एडजस्ट द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। ये एंट्रीज जो हैं डिफरेंट लेजर्स के बैलेंस को भी एडजस्ट करती हैं। और बात यह है कि जी एडजस्टमेंट प्रोसेस की बात हो रही थी। When transactions span more than one accounting period, accrual accounting requires the use of these are either differential accruals, is postponement of the recognition in an expense already paid or of the revenue received in advance. The cash payment or receipt is recorded before the before the adjusting entry is made, and is the recognition of expense or revenue that has arisen but not recorded during the accounting period. The cash payment or receipt occurs in future accounting period. ये जरा कॉम्प्रीहेंड करने की जरूरत है। एडजस्टिंग प्रोसेस की बात हो रही है और एडजस्टिंग एंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। द कैश पेमेंट और receipt is recorded before the adjusting of entry is made. Basically it is the recognition of an expense or a revenue that has arisen but not been recorded during the accounting period. The cash payments or receipts occurs in a future accounting period. ये जरूरी चीज है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए हर पॉइंट इन टाइम। टाइप 1 एडजस्टमेंट, allocating recorded cost, that is also known as the deferred expenses. So टाइप 1 ये है एडजस्टमेंट की। जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी टाइप 1 है allocating recorded cost, that is the deferred expenses. Companies often make expenditures that benefit more than one period. Obviously नंबर ऑफ टाइम कंपनीज ने ऐसी एडजस्टमेंट की होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स किए होते हैं जो मोर देन वन टाइम उनको बेनिफिट दे रहे हैं। दीज कास्ट आर डेबिटेड टू एन एसेट अकाउंट। ये सारी की सारी कास्ट डेबिट हो जाती हैं अपने एसेट अकाउंट में से। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द अमाउंट ऑफ द एसेट दैट हैज बीन यूज्ड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसेट अकाउंट टू एन एक्सपेंस अकाउंट। यानी एसेट अकाउंट से एक्सपेंस अकाउंट में अमाउंट कब शिफ्ट होती है, ये जो बेनिफिशियरी अमाउंट्स के केस में, पेमेंट के केस में है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, द अमाउंट ऑफ दीज एसेट हैज बीन यूज्ड टू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एसेट अकाउंट टू द एक्सपेंस अकाउंट। एसेट अकाउंट से वो माइनस हो जाती है टुवर्ड्स द एक्सपेंस अकाउंट। These are the costs that companies pay in advance, such as rents, supplies, and insurances. डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो मेन प्रोजेक्ट्स पे अक्सर यूज होता है। बात की जाती है प्लांट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट पे अगर हम बात करें, व्हेन अ कंपनी बाइज अ लॉन्ग टर्म एसेट, इट इज पेइंग फॉर द यूजफुलनेस ऑफ दैट एसेट फॉर एज लॉन्ग एज इट बेनिफिट्स द कंपनी. The accountant must allocate the cost of the asset over its estimated useful life.
The amount allocated to any one account period is called that is depreciation. प्लांट की जो depreciation price है वो उसको हम कहते हैं. So when a company buys a long term asset, जब company long term asset खरीदती है, it's paid for the usefulness of that asset for as long as it benefits the company. The accountant must allocate the cost of the asset over its estimated useful life. The amount allocated to any one accounting period is called that particular amount depreciated amount भी कहा जा सकता है. Depreciation और plant equipment के केस में to maintain historical cost, accounts are used to accumulate the depreciation on each long term asset. हर long term asset के लिए depreciation के लिए accounts को maintain किया जाता है. The accounts are called depreciated account costs. The balance of contra account is shown on a financial statement as a reduction from its related accounts. For example, an asset account. Asset account में से उस depreciation को निकाल दिया जाता है. The net amount is called carrying value. जो भी net amount है उसको carrying value के नाम से जाना जाता है और book value of the asset. So ये बहुत अहम पॉइंट है जो समझने के से ताल्लुक रखता है. The net amount is called the carrying value, जो बाकी बंदा वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. टाइप 2 एडजस्टमेंट, ये बहुत अहम है. जो टाइप 2 एडजस्टमेंट की जब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज है. टाइप 2 एडजस्टमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस दैट इज अक्योर्ड एक्सपेंसेस. टाइप 2 एडजस्टमेंट्स क्या हैं? इट इज द रिकॉग्नाइजिंग अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस आर द अक्योर्ड एक्सपेंसेस. एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड some expense incurred during the period have not been recorded. वो उसके दौरान रिकॉर्ड नहीं होते. These expense require adjusting entries. ये कौन कौन सी हैं एंट्रीज हैं? These examples include interest on borrowed money. जैसे borrowed money जो हमने borrow किया हुआ उसके इंटरेस्ट को देखते हैं हम, wages को देखते हैं, utilities को देखते हैं. These expense are called accrued expenses. यानी ये जो सारे के सारे एक्सपेंस हुए हैं इनको अक्योर्ड एक्सपेंसेस भी कहा जाता है. बिकॉज एज द एक्सपेंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी एक्यूमुलेट्स दे आर सेट टू अकर. सो व्हाट इज अक्योर्ड एक्सपेंसेस? ये जो एक्सपेंस हैं यूटिलिटीज के, इंटरेस्ट के, वेजेस के, ये वो वाले एक्सपेंस है. दीज एक्सपेंस आर कॉल्ड अक्योर्ड एक्सपेंसेस बिकॉज एज द एक्सपेंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी एक्यूमुलेट दे आर सेट टू अकर. सो इसकी बेहतर एग्जाम्पल जो है आपकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए, इंटरेस्ट है ऑन द बॉरोड मनी, वेजेस हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं एंड ऑल दैट. टाइप 3 एडजस्टमेंट भी एक कंसेप्ट होता है अकाउंट्स में जिसके मतलब जिक्र किया जाता है. दिस इज नोन एज टाइप 3 एडजस्टमेंट. अलोकेटिंग रिकॉर्डेड अनरेड रेवेन्यूज दैट इज द डेफर्ड रेवेन्यूज. टाइप 3 एडजस्टमेंट इसको हम यूं भी कहते हैं, अलोकेटिंग रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रेवेन्यूज दैट इज द डेफर्ड रेवेन्यूज. इसमें क्या है? When a company receives revenues in advance, it has an obligation to deliver goods or perform services. These unearned revenues are shown in a liability account. जो unearned revenues हैं उनको liability account में show किया जाता है. इसको कहा जाता है when a company receives revenue in advance, it has an obligation to deliver the goods or perform services. These are known as unearned revenues are shown in a liability accounts. Now टाइप 3 एडजस्टमेंट की एक और जरूरी चीज है. एज अ कंपनी डिलीवर्स पार्ट ऑफ द गुड्स और परफॉर्म्स पार्ट ऑफ द सर्विसेज, इट अर्न्स अ पार्ट ऑफ द एडवांस रिसिप्ट. चूंकि सर्विसेज का भी कुछ हिस्सा फुल तो नहीं किया होता, कुछ पोर्शन किया होता है, तो इसी तरह पार्ट ऑफ द एडवांस रिसिप्ट भी ली जाती है. द अर्न पोर्शन मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लायबिलिटी अकाउंट टू अ रेवेन्यू अकाउंट. वो लायबिलिटी अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है टुवर्ड्स द रेवेन्यू अकाउंट्स. नाउ वी कम अक्रॉस द टाइप 4 एडजस्टमेंट. ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअली एडजस्टमेंट है. इसको भी जरा रिकैप्चुलेट करें, कॉम्प्रीहेंड करें. काइंडली फोकस ऑन दिस. इट सेज के रिकॉग्नाइजिंग अनरिकॉर्डेड अर्न्ड रेवेन्यूज दैट इज अक्योर्ड रेवेन्यूज. अक्योर्ड रेवेन्यूज और रेवेन्यूज that a company has earned by performing a service or delivering goods but for which no entry has been made in the accounting records. Any revenues earned but not recorded during an accounting period require an adjusting entry that debits an asset account and credits a revenue account. ये बहुत अहम पॉइंट है. अभी हम इस स्लाइड पे हैं. यूजिंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कैसे यूज किया जाता है. आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड
an adjusting trial balance is prepared by listing all accounts and their balances. ये जब सारी की सारी एंट्रीज ले ली जाती हैं, एंट्रीज कर दी जाती हैं, पोस्ट कर दी जाती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके बाद ये एडजस्ट ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होता है. अच्छा, इसकी पहली बुलेट है, द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड द एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. बहुत अहम पॉइंट है और काइंडली बी फोकस्ड मैं दोबारा आपसे शेयर करता हूं क्योंकि इसी पे आगे बात ज्यादा चलनी है हमारी बार बार. वो कहते हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस जो अकाउंट है ये कब बनती है, ट्रायल बैलेंस जो है फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस की बात एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं. ये बनाते हैं जनाब आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन रिकॉर्डेड, जब एडजस्टिंग एंट्री सारी हो गई हैं एंड पोस्टेड और पोस्ट हो गई हैं एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय लिस्टिंग ऑल अकाउंट्स एंड देयर बैलेंस. सारे के सारे अकाउंट्स और बैलेंसेस को उनके लिए ये किया जाता है. द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, द रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स आर यूज्ड to prepare the income statement and the asset and liability account are used to prepare the balance sheet. ये बहुत टची पॉइंट है, जरा थोड़ा सा गौर इस पे कर लें. रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्या बनाते हैं, इनकम स्टेट बनाते हैं. जब भी हमने इनकम स्टेटमेंट की बात करनी है हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करनी है, और जब भी हमने बैलेंस शीट की बात करनी है एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट्स यूज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट के लिए क्या चीज आपको चाहिए, रेवेन्यू और एक्सपेंस, और बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट दोनों का आपको क्लियर होना चाहिए टू मेक द बैलेंस शीट. यूजिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेट इनकम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट इज कंबाइंड विद द विथड्रॉल्स अकाउंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी टू गिव द नेट चेंज इन द कैपिटल अकाउंट. जो भी विथड्रॉल अकाउंट है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी टू गिव द नेट चेंज इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी नेट चेंज हो. द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के बनाने के काम आता है. हम बात कर रहे थे डिस्कस द रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अकाउंटिंग रिकॉर्ड का ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, इस पर काइंडली फोकस करना है आपने. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट इज समराइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहली बात यह है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समराइज होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी होती है एंड अदर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. यानी जितने सारे के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स की और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं सारी की सारी चीज़ें. इन एडिशन these records are used by company's management and employees for such purpose as establishing accountability for assets and transactions and keeping track of the routine business activities. इसके अलावा obtaining details about specific transactions, जो specific transactions हैं उनकी details भी ली जाती हैं. Evaluating the performance of units within the business जो performance unit होती हैं उनकी performance को भी अकाउंटेबिलिटी की जाती है, उनकी फीडबैक ली जाती है, एनालाइज किया जाता है उनको और उनकी एवेल्युएशन की जाती है. मेंटेनिंग अ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज का जितना डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जाता है. सच अ रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड बाय टैक्स लॉज एंड इज यूजफुल फॉर द मैनी बिजनेस पर्पज इंक्लूडिंग ऑडिट वगैरह के लिए जो चीजें यूज होती हैं. हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनके डिफरेंट पर्पसेस के लिए सारी की सारी अकाउंटिंग यूज होती है. परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी यूज होती है विद इन अ बिजनेस, ऑडिट पर्पसेस के लिए भी सारा शेड्यूल यूज होता है और डिफरेंट जितनी कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल है उससे प्रेडिक्ट होता है उस डाटा से जो इसमें सारा रखा जाता है अकाउंटिंग में. अभी हम बात करने लगे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड. अकाउंटिंग रिकॉर्ड को जनरलाइज करने के लिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, जर्नल क्या है, जर्नल किसको कहते हैं हमने पहले भी बात की है, दोबारा हम कर रहे हैं. अ जर्नल अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस showing for each transaction the debits and credits to be entered in specific ledger accounts. Account क्या है? Account a record used to summarize all increases and decreases in a particular asset. कि ये वो समरी है जो इंक्रीज या डिक्रीज जो पर्टिकुलर एसेट को उसको ये शो करती है, विजिबल करती है. सच एज कैश, जैसे कैश है, और एनी अदर टाइप ऑफ एसेट्स दैट इज लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और द एक्सपेंस.
लेजर क्या है? An accounting system includes separate record of for each item that appears in the financial statement. अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी आइटम अलग-अलग अपीयर होता है उसके अलग रिकॉर्ड रखा जाता है. Collectively these records are referred to as company's ledger. Collectively जब उन पेजेस को इकट्ठा कर दिया जाता है तो एज ए लेजर उनको कहते हैं. Individually these records are often referred to as ledger accounts. और इंडिविजुअली इनको लेजर अकाउंट्स नहीं कहा जाते, उनके रिकॉर्ड सिर्फ अलग-अलग रखा जाता है हर एक. क्रेडिट क्या है? क्रेडिट इज एन अमाउंट इंटर्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट. जो भी अमाउंट हम राइट हैंड साइड पे इंटर करते हैं साथ साथ उसको क्रेडिट कहते हैं. अ क्रेडिट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन एन एसेट और एन इंक्रीज इन लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी. ये कोई एक चीज एट द सेम टाइम हो रही होती है, या तो एसेट में डिक्रीज हो रही होती है या लायबिलिटी में इंक्रीज हो रही होती है या ओनर की इक्विटी में कुछ चेंज आ रही होती है. डेबिट क्या है? वेरी बेसिक डेफिनेशन जो दोबारा हम चाहते हैं कि आप पढ़ें और आपके नॉलेज में आए और फोकस कर लें. इट्स एन अमाउंट इंटर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेजर. जो लेफ्ट साइड के लेजर में इंटर होती है वो है. अ डेबिट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एन इंक्रीज इन एन एसेट और अ डिक्रीज इन लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी. पोस्टिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू इंडिविजुअल अकाउंट इन द लेजर. जर्नल में से निकाल के जब किसी के इंडिविजुअल अकाउंट में कोई अमाउंट या कोई एंट्री करते हैं तो वो जर्नल जनरली कहलाती है. और बेसिक कंसेप्ट ऑफ जर्नलाइजिंग की बात हो रही है, उसमें भी बात करेंगे हम अकाउंटिंग पीरियड की. द स्पैन ऑफ टाइम कवर्ड बाय एन इनकम स्टेटमेंट 1 year इज द अकाउंटिंग पीरियड फॉर द मच फिनेंशियल रिपोर्टिंग. मोस्ट ऑफ द फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो ईयरली बेसिस पे करते हैं, बट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर एंड फॉर ईच मंथ. बेसिकली पूरे साल के लिए जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, और बाज केसेस में फिनेंशियल रिपोर्टिंग को, इनकम स्टेटमेंट को ईयरली शो करने की बजाय वो क्वार्टरली भी अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं टू सी दी हेल्थ प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल और एंटरप्रेन्योरशिप और वट एवर इट इज. जो भी एम हो कंपनी का, एक्सपेंस देखना, रेवेन्यूज देखना, उसकी ओवरऑल बिजनेस हेल्थ देखना एंटरप्राइज की, वो उसके लिए करते हैं. क्वार्टरली भी करते हैं, लेकिन मोस्टली इनकम स्टेटमेंट जो है वो एनुअली होती है, पूरे साल की होती है. फिस्कल ईयर क्या होता है? एकेडमिकली फिस्कल ईयर एनी 12 month अकाउंटिंग पीरियड अडॉप्टेड बाय बिजनेस. जो भी बिजनेस अडॉप्ट करता है 12 month का साइकिल, वो जब से मर्जी शुरू करे 12 month का साइकिल होना चाहिए, उसको फिस्कल ईयर कहा जाता है. अभी एडजस्टिंग एंट्रीज, ये अगला कंसेप्ट है जो वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट. एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड टू अपडेट द अकाउंट्स बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले कुछ साल के आखिर में उस पर्टिकुलर पीरियड के जो आप एंट्रियां करते हैं जस्ट टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करनी होती है उसमें. एडजस्टिंग एंट्रीज सर्व टू अपोर्शन ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली बिटवीन द अकाउंटिंग पीरियड्स अफेक्टेड and to record any revenue earned or expenses incurred that have not been recorded prior to the end of the period, जो वो उससे पहले नहीं हुए. दूसरी टर्म है क्लोजिंग एंट्रीज. क्लोजिंग एंट्रीज क्या है? जनरल एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द पर्पज ऑफ क्लोजिंग टेम्पररी अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट्स एंड ट्रांसफरिंग बैलेंस टू द ओनर्स कैपिटल अकाउंट. जो बैलेंस ट्रांसफर होता है ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है. Now we'll talk about the trial balance. What is trial balance? A 2-column schedule listing the names and the debit or credit balance of all accounts in the ledger. After closing trial balance, एक trial balance है, एक after closing trial balance है. What is the after closing trial balance? A trial balance prepared after all closing entries have been made. ये वो trial balance है जब closing entries सारी की सारी हो गई हैं. Consists only of accounts for assets, liabilities and owner's equity. डबल एंट्री अकाउंटिंग. डबल एंट्री अकाउंटिंग क्या है जी? बड़ा अहम पॉइंट है. डबल एंट्री अकाउंटिंग में क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन विद इक्वल डॉलर अमाउंट्स ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन इन बैलेंस. दिस सिस्टम मेक्स पॉसिबल द मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम एंड ऑल्सो द यूज ऑफ एरर डिटेक्टिंग डिवाइस सच एज ट्रायल बैलेंस. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस. जो सर्विसेज या गुड्स की प्राइस होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं पर्टिकुलर बिजनेस में. हम बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं. बेसिक कंसेप्ट में अभी एक्सपेंसेस की बात करते हैं.
एक्सपेंसेस क्या हैं? द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या है? जो रेवेन्यू ऑब्टेन करने के लिए गुड्स या सर्विसेज या एक्सपेंडिचर्स आपने किए हैं उसको एक्सपेंसेस का नाम दिया गया, बिकॉज बिजनेस में आप रेवेन्यू जनरेट करना इज योर मेन एम। नेट इनकम क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। नेट इनकम क्या है? एन इंक्रीज ओनर्स की इक्विटी में जो इंक्रीज होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ऑपरेशन। ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव ऑपरेशन है, प्रॉफिटेबल है, तो तब ये उसमें ऐड होगी। ऑल्सो द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अर्नड ओवर द रिलेटेड एक्सपेंस फॉर अ गिवन पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो रेवेन्यूज हैं वो ज्यादा हों एक्सपेंस से, तो तब नेट इनकम भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी ओवरऑल। नेट लॉस क्या है? जैसे नेट इनकम है उसका प्योरली बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट जो है नेट लॉस है। अ डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, जो ओनर्स की इक्विटी में डिक्रीज होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन, जो अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशन से की वजह से होती है। डेप्रिसिएशन, द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यानी सिस्टमैटिक जो डेप्रिसिएशन आ रही है उसमें कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट में टू एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, उसके यूजफुल लाइफ के पीरियड के दौरान। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या हैं? व्हाट आर द डेप्रिशिएबल एसेट्स? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद अ लिमिटेड लाइफ, द कॉस्ट ऑफ दीज एसेट्स इज ग्रेजुअली पीरियडिकली रिकग्नाइज्ड एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस ट्रेंड की तरफ जा रही होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लांट की लाइफ हो गई, गाड़ियों की लाइफ हो गई। यूजफुल लाइफ, द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर द बिजनेस। ये वो टाइम स्पैन है जिसमें वो टाइम दैट अ डेप्रिशिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल बिजनेस, जो कि बिजनेस में प्रोएक्टिवली पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करता है उस पर्टिकुलर आइटम की जो लाइफ है। दिस इज द पीरियड over which the cost of the asset is allocated to depreciation expense. The widely used approach for recognition an equal amount of depreciation expense in each period of depreciable asset is useful life. इसका दूसरा एंगल है। Rules of debit and credit for balance sheet accounts. कौन से रूल्स अप्लाई होती हैं डेबिट और क्रेडिट की बैलेंस शीट में, वो हम रिपीट करते हैं आपके लिए। Increase in assets are recorded by debits and decrease are recorded by credits. एसेट्स में जो इंक्रीज होती है उसको एज ए डेबिट्स किया जाता है और डिक्रीज जो रिकॉर्ड होती है वो क्रेडिट्स के तौर पे ली जाती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी आर रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट्स। लायबिलिटी में जो इंक्रीज है और ओनर्स इक्विटी में जो इंक्रीज है वो क्रेडिट्स के तौर पे होती है, एंड डिक्रीज आर रिकॉर्डेड बाय डेबिट्स, और डिक्रीज को डेबिट्स के तौर पे देखा जाता है। द डेबिट्स एंड क्रेडिट रूल्स are related to an account's location in the balance sheet. ये दोनों डेबिट और क्रेडिट टूल जो हैं अकाउंट की लोकेशन के लिहाज से एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट में उस पे बात इस पे करते हैं। If the account appears on the left hand side of the balance sheet, that is asset accounts, increases in account balance are recorded by the left side entries, that is debits. If the account appears on the right hand side of the balance sheet, that is liability and owner's equity accounts, increases are recorded by right side entries, that is credit. वो credit की तरफ चले जाते हैं। राइट साइड पे क्रेडिट हो गया, लेफ्ट साइड पे डेबिट हो गया। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। A 2-column schedule listing the names and debit or credit balance of all accounts in the ledger. ये शेड्यूल और डेबिट और क्रेडिट के सारे बैलेंस को ये डील करता है। इन अ ट्रायल बैलेंस सेपरेट डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर यूज्ड टू लिस्ट द बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स। द 2 columns आर देन रिलेटेड टू प्रूव द इक्वलिटी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। दोनों डेबिट और क्रेडिट को जब इक्वल शो किया जाता है और उसमें आपके अकाउंट्स की वैलिडिटी, ऑथेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन भी हो जाती है उसमें। ट्रायल बैलेंस के यूजेस क्या हैं? The process provides assurance that trial balance का जो process है, the total of the debit posted on ledger was equal to the total of the credits, and the balances of the individual ledger accounts were correctly computed. Individual ledger account के जो balances थे वो correctly commute किए गए थे। ट्रायल बैलेंस की बात हम करेंगे तो दोबारा हम शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस में हम उसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। While a trial balance proves the equality of debit and credit,
entries in the ledger, it doesn't detect such errors as failure to record a business transaction, improper analysis of the accounts affected by the transactions, or the posting of debit or credit entries to the wrong accounts. Closing entries and their purpose. Closing entries, these are the journal entries made at the end of the period for the purpose of closing temporary accounts, revenue, expense and owners drawing accounts and transferring balance to the owner's capital account. Closing entries ये क्या होती हैं जी? Journal entries made at the end of the period, जो पीरियड के आखिर में, किसी पर्टिकुलर पीरियड के आखिर में इंटर की जाती हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग टेम्परेरी अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ओनर्स ड्राइंग अकाउंट्स एंड ट्रांसफरिंग बैलेंस टू द ओनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं बात कर रहा था क्लोजिंग एंट्रीज और उनका पर्पस क्या है। क्लोजिंग एंट्रीज एंड देयर पर्पस क्या है? क्लोजिंग एंट्रीज सर्व टू बेसिक पर्पस, इनके दो बेसिक पर्पस होते हैं। टू रिटर्न द बैलेंस ऑफ द टेम्परेरी ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड ड्राइंग अकाउंट्स to zero so that these accounts may be used to measure the activities of the next accounting period. पहला पर्पस तो ये है क्लोजिंग एंट्रीज का, टू रिटर्न द बैलेंस ऑफ द टेम्परेरी ओनर्स इक्विटी अकाउंट्स, जो है ओनर्स की टेम्परेरी इक्विटी का उसके बैलेंस अकाउंट को रिटर्न करना, रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो एंड ड्राइंग अकाउंट्स टू जीरो, उसको जीरो पे लाना, सो दैट दीज अकाउंट्स में बी यूज्ड टू मेजर द एक्टिविटीज ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ताकि कमिंग अकाउंटिंग पीरियड में भी दोबारा एक्टिविटी सिमिलर लाइंस पे मेजर की जा सके। सेकंड पर्पस है इनका क्लोजिंग एंट्रीज का, टू अपडेट द बैलेंस ऑफ ओनर्स कैपिटल अमाउंट, ओनर के कैपिटल अमाउंट के बैलेंस को अपडेट करती हैं ये क्लोजिंग एंट्रीज एंड देयर पर्पस। तीसरा पर्पस जो है इनका है इनकम समरी देती हैं। इनकम समरी, द समरी अकाउंट इन द लेजर टू विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज्ड at the end of the period, at the end of that particular period, the balance, credit balance for a net income, debit balance for a net loss is transferred to the owner's capital account. ये basically income summary भी reflect करती हैं closing entries जो है at the end of this particular time period और उसके cycle के साथ। Closing entries and their purpose, 4 closing entries are generally needed. 4 तरह की closing entries आमतौर पे चाहिए होती हैं, वो हमें clear होना चाहिए। दोबारा मैं रिपीट करता हूं आपके लिए। देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज व्हिच आर जनरली रिक्वायर्ड। नंबर 1, इट इज क्लोज द रेवेन्यू अकाउंट्स इनटू द इनकम समरी अकाउंट। सेकंड इज क्लोज द एक्सपेंस अकाउंट इनटू द इनकम समरी अकाउंट। थर्ड इज द क्लोज द बैलेंस ऑफ द इनकम समरी अकाउंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग नेट इनकम और नेट लॉस इनटू द ओनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड क्लोज द ड्राइंग अकाउंट इनटू द ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट या ओनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको काउंट किया जाए। अभी just for the purpose of clarity, just for the purpose of clear comprehension, I would like to share with you a particular example so that कि ये values, ये चीजें posting सारी clear हों और सारे concepts भी साथ साथ आप recapitulate कर सकें। It says practical example है, Lois Dixon, a dentist, resigned from his position with a larger dental group in order to begin his own pediatric dental practice. The practice was organized as a sole partnership. उसने sole proprietorship पे शुरू की, called Lois Dixon Pediatric Dentistry. The business transactions during September while the new venture was being organized are listed below. उसने जो नई sole proprietary पे अपना बिजनेस शुरू किया, क्या उसकी ट्रांजेक्शन थी। स्टेप 1, Dixon opened a bank account in the name of the business by depositing 50,000 cash. पे उन्होंने बिजनेस अकाउंट खोला which he had saved over a number of years. स्टेप 2, उन्होंने सितंबर 10 को परचेज्ड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड इन अ लार्ज लॉट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 1,82,400 फॉर ईच 106,000 वाज एप्लीकेबल टू द लैंड एंड 76,400 to the building. A cash payment of rupees 36,500 was made and note payable was issued for the balance of the purchase price. सितंबर 15 को उन्होंने 15 सितंबर को परचेज द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर और फॉर द 4680 कैश भी उन्होंने लिया। सितंबर 19 को उन्हें परचेज ऑफिस फर्निशिंग जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ें ली, इंक्लूडिंग डेंटल इक्विपमेंट, ऑपरेशंस 5760 की और डिफरेंट उन्हें चीज़ें। अ कैश ड्राइंग पेमेंट ऑफ $960 वाज मेड, the balance to be paid in 3 equal installments due in October 28 and November 28. The purchase was on open account and did not require signing of the promissory note.